ओम शांति। जो पीछे पीछे बैठे हैं ना, वो थोड़ा सा आगे आ जाए तो अच्छा है। जब क्लास में बैठ के सुनना ही है तो क्यों ना आगे बैठ जाएं, है ना। आ जाइए, जो भी आके बैठ रहे हैं ना वो आगे आ जाओ। पीछे बैठ के सुनने में कुछ खास समझ आता है क्या? ऐसा है क्या? कुछ स्पेशलिटी है पीछे बैठ के सुनने में? नहीं ना? अच्छा, चलो। So today's topic now will be art of balancing. How many of you attended the Nagpur administration training session? Is there anybody sitting here? No. Okay. So what is balancing? Generally जब हम प्रोफेशनल्स के लिए बैलेंसिंग की बात करते हैं तो अक्सर एक बैलेंस माइंड में तुरंत आता है। ब्रदर, they don't want fans in the hall. It's only, I think, few people wants it. Yeah, in the front it is okay. Okay, what is balancing when we talk about professionals? Well, who said that? जी? हाँ, तो what type of balancing do we talk about? वर्क लाइफ बैलेंस, राइट? ओके। अब दुनिया को एक ही चीज़ पता है, वो कहते हैं हमें वर्क लाइफ बैलेंस सिखाओ। आज ये टॉपिक की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? वाई डू वी नीड दिस टॉपिक एट ऑल टुडे? Some 25-30 years back, nobody talked about, balancing sessions. Nobody wanted that also. And especially, nobody thought that even Brahma Kumaris can teach them some balancing. Right? So, why do we need balancing today? What is the need of this session? What do you think? Ji? Huh? We are unbalanced, so that is why we need balance, right? So what happens is, some 25-30 years back, life was not this uncertain. It was much smoother, right? Life was constant. There was no uncertainty to this degree that time. Yes? Huh? So life was in one particular way, it was constant in some aspect. But now, the life is not constant. Right? So life is like ups and downs, and frequently fluctuating. It is fluctuating very frequently, and anything can happen anytime. It's that uncertain. Because of this multitasking also, this is a big loss that people are facing today. Whereas in some time back, people used to think multitasking is a good trait. But now that multitasking is somewhere, it has got its own plus, but it also has its own minuses. Right? So, life today is very uncertain. It's like up and down. Today sorrow, today busy, today not so busy, very boring, not so boring, excited, not so excited. So it's like this, right? So that is why people lose balance very often today. Because the life is not certain, people are losing their balances very frequently. There used to be a time when, people used to lose their temper once in a while. They used to have stress sometime in life. But today, people are living in stress. People have the nature of being angry.
Not that they are losing temper sometimes, no. Right? So, you're getting my point? Huh? Because of uncertain times, because of too much of fluctuations in our life patterns, in our thought patterns, in the way we live life, in the attitudes, in the emotions, we are very much fluctuating. Hence, people are losing their balances today. Now, what kind of balances? If you ask any layman, okay, if you're talking to an intellectual person, he might probably answer 1 or 2 points, or maybe 2, 3 points, because they're intellectuals, right? But for a layman, they only know work-life balance. But to be able to perform best in the work and in personal life, we need to maintain certain balances. What are those balances? Is what we are going to talk about in this session. Okay? So now I would want you to tell me what kind of balances people need to be managing. Emotional balance. What does that mean? Right. Right. Good. What else? G? Getting what? Influenced by the external circumstances. Okay. And? टाइम का बैलेंस बनाना पड़ता है, राइट? और टाइम को मैनेज करना पड़ता है. बैलेंस का मतलब 2 चीज़ें हैं जिसको आप पकड़ रहे हो. What are those 2 things? Responsibilities and relationships. अच्छा, हम सब बाबा के बच्चे हैं. Family and work, which is work-life balance. ना दुनिया में they call personal life to family, and then they say there is work, professional life. Okay. Do we need to maintain a balance between the work and the entertainment? हाँ. हाँ. Okay. See, Baba has taught us a lot of balances. वो वाले कौन से बैलेंस है बताओ? Right? ये सबसे पहले आता है. Love and law. Now this is very new to people. उनको नहीं पता है love and law का बैलेंस क्या होता है. इसलिए हमें क्योंकि spirituality देना है ना, we don't have to teach them management. They are experts in that. We have to give our expertise. And what is our expertise? It is spirituality. So we have to give them some spiritual concepts in terms of balancing. So one could be love and law. Now when we speak about love and law, okay, we'll get into this deeper a little while later. What else? और कौन-कौन सा balance बताया बाबा ने? जी? याद और सेवा. अच्छा, याद और सेवा, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस, और बैलेंसिंग ऑफ 4 सब्जेक्ट्स. अच्छा, और बालक सो मालिक. करना और कहना और करना, उसको तो समान बनाना है, इक्वल बनाना है. हाँ हाँ, बाबा जिसको कहते हैं स्नेह और शक्ति. हाँ, ये आप नोट करके रखना. ये आपको अपने आर्ट ऑफ बैलेंसिंग सेशन में उनको देना है. अब बाबा की बात अगर उनको देना है तो बाबा की बात को उनके माइंडसेट के हिसाब से कनेक्ट करना आना चाहिए. हमें सिर्फ कनेक्शन बनाना है बस, है ना. तो बाबा ने जो हमको सिखाया है, बालक सो मालिक, स्नेह और शक्ति का बैलेंस, लव एंड लॉ का बैलेंस, और क्या है, और क्या बताया आपने?
रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस, हाँ ये याद और सेवा का बैलेंस, हाँ याद और सेवा का बैलेंस। ओके ग्रेट, बस अभी यहाँ ठहरते हैं, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं समझ पाएंगे, है ना? तो ठीक है, अभी हम एक एक करके बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जैसे ही हम लव एंड लॉ का बैलेंस कहते हैं ना, तो आप एग्जाम्पल दो इसमें। हाँ, उनको ये बताना है कौन से प्रकार का लव होगा तो लॉ अलग से एनफोर्स करना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हमें कहीं कानून रूल्स बनाने हैं, रेगुलेशंस फॉलो करवाना है, तो इसका मतलब हमें लवफुल होकर के लॉ को एनफोर्स करना पड़ेगा। ये बात उनको समझ नहीं आएगी। क्यों? उनको लगता है लव लव करेंगे तो कोई नहीं रूल मानता है, इज़ वॉट दे विल से, राइट? तो उनको बताना है लव का मतलब क्या है, कौन सा वाला लव, मोह वाला लव, अटैचमेंट वाला लव। कुछ लोग बोलते हैं जहाँ प्यार है वहाँ ही तो लड़ाई लड़ते हैं। That's not love. If you really love somebody, you cannot fight. You're always ready to sacrifice. You always trust that person and you respect them so deeply that you will never fight with them. Right? There'll be a good understanding in that love. तो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर एक स्पिरिचुअल लव उनको बताना है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को रोज स्टडी करते हैं, तो हमें बहुत अच्छे स्पिरिचुअल टूल्स मिलते हैं। कुछ हमें स्पिरिचुअलिटी के ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं जिसको आप अगर अपने तरीके से भी प्रैक्टिकली लागू कर लेंगे ना, आपको बहुत वर्क में भी सक्सेसफुल आप रहेंगे, रिलेशनशिप्स में भी सक्सेसफुल रहेंगे, और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोसाइटी, सब जगह सक्सेसफुल रह सकते हैं। तो लव एंड लॉ, इसमें आप दादी जी का एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी जो फाउंडिंग फादर, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे, एंड शी वाज द लेडी व्हेन शी टुक ओवर द चार्ज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश्ड एंड इट स्प्रेड across the globe with many centers. Today we are operating in 140 countries. And this is because of Dadi Prakashmani ji's efforts and leadership. फिर उनको दादी का चित्र दिखाकर आप बता सकते हो, शी वॉज अ ट्रू लीडर। शी वॉज, जैसे उनको कह सकते हैं कि देखिए आप अपने घर में अभी, हाँ ओके, तो दादी का बता सकते हैं कि दादी की लीडरशिप की ये खासियत थी कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की मुखिया होते हुए भी दादी हम बहनों को भी, जैसे हम लोगों ने दादी को देखा है और दादी को व्यवहार में आते हुए देखा है, उनकी जीवन को देखा है, तो उनकी जीवन से हमें यही दिखता है कि इतने सारे अलग अलग संस्कार, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग क्वालिफिकेशन, अलग एकेडमिक बैकग्राउंड, अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हुए भी सबको एक समान चलाती थी और सबको एक जैसा प्यार महसूस होता था। लेकिन दादी का एक नियम था, वो हमेशा प्यार से इतना स्नेह देती थी, शिक्षा देने से पहले उनकी मन की धरनी को प्यार से, स्नेह से तैयार कर देती थी, ताकि शिक्षा देने के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए उनका मन तैयार हो जाए। जैसे हम लोग, मैं तो ये बताती हूँ, जब भी मैं ये बात रखती हूँ तो मैं ये बताती हूँ कि हमने देखा है हमारी दादियों को, सीनियर्स को, कि जैसे मान लीजिए किसी एक बहन के बारे में दादी को कुछ ऑब्जर्व हुआ, या किसी समर्पित आत्मा भाई बहन कोई भी सामने दिखे, स्टूडेंट्स दिखे, तो उनके बारे में कोई बात दादी को लगा कि नहीं इसको थोड़ा सा और ठीक होना चाहिए, तो दादी एकदम नहीं टोकती थी, ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे थोड़ी करते हैं, तुम मेडिटेशन करते हो, नहीं। दादी हमेशा ऑब्जर्व करके मन में समा लेती थी, और जब समय होता था, कभी आमने सामने मिलना होता था, कभी बात करना होता था, मिलजुल कर कोई सेवा करनी होती थी, वो आत्मा सामने आती थी तो उसको बड़े प्यार से उससे बात करती थी, और क्या है, कैसा है, ठीक हो, तबीयत ठीक है, सब ठीक चल रहा है, सेवाएं कैसी चल रही है। जब प्यार से बातचीत हो जाती थी ना, फिर कहती थी देखो आपके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं,
ये हमें पता है ना ये सारी चीज़ें। तो आपके अंदर कितनी सारी अच्छी क्वालिटीज़, आप ये भी बहुत अच्छा करते हो, आपके अंदर बहुत विशेषताएं हैं, थोड़ा सा अगर इसको भी चेंज कर लोगे ना तो देखो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये उनको नया लगता है, नया ना भी लगे अच्छा लगता है सुनना, क्योंकि चाहे प्रोफेशनल्स ही क्यों ना बैठे हों, है तो आत्मा ही, और आत्मा को स्नेह प्यार की बातें समझ आती हैं और अच्छी लगती हैं। तो इसलिए लव एंड लॉ के बैलेंस में जैसे दादी का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद लॉ के लिए, इसीलिए उनकी बात ये और कंटिन्यू करके सुना सकते हैं कि देखिए जब लॉ, कोई भी लॉ, नियम को लागू करना होता था तो दादी कभी नियम को नियम रूप से लागू नहीं करती थी। वो इतना दिल से, प्यार से, ट्रांसपेरेंट, प्योर लव सभी को देती थी। उनके प्यार और स्नेह के कारण हर आत्मा को कोई भी नियम सहज लगता था, हर आत्मा को कोई भी शिक्षाएं हजम हो जाती थी। तो लव ही लॉ बन जाता था, अलग से लॉ को लागू करने की आवश्यकता पड़ती नहीं थी। तो फिर उनको कुछ सोचने के लिए विषय मिल जाएगा, अच्छा ये भी कोई तरीका है। नहीं तो दुनिया के आजकल क्या, दुनिया जो जिस डेफिनेशन से आज चल रही है उनके डेफिनेशन से बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं प्यार से बोलने से काम नहीं चलता है, आजकल बोल के देखो कौन करता है, करके देखो कैसे होगा, अगर ये सब करने लगे तो ऑफिस में काम नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी डेफिनेशंस वो आत्माएं लेके चल रही हैं, उनकी गलती नहीं है, पर समय भी तो ऐसा है। पर हमें उनको ये राह दिखानी है। जब हम मेडिटेशन करते हैं उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी अपनी आत्मा के अंदर इतनी स्ट्रेंथ, पावर ऑफ लव इतना स्ट्रांग हो जाता है, द लव बिकम्स अ पावर। लव, जैसे दुनिया में लव की भी डेफिनेशन क्या है, लव ऐसा लव है आज दुनिया में जो खुद भी मोह में कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे प्यार है उसको भी कमज़ोर कर देते हैं और डिपेंडेंट बना देते हैं। उनको ये बताना है कि हमारी दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने, हमारे फाउंडिंग फादर का प्यार और स्नेह जो परमात्मा हमको सिखाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, उस स्नेह प्यार में ऐसी ताकत होती है, वो खुद को भी इंडिपेंडेंट बनाती है, अपनी आत्मा को भी फ्रीडम में रहना सिखाती है, और जिससे स्नेह प्यार है ना उसको भी फ्री रखती है, उसको भी बांधती नहीं है, उसको डिपेंड नहीं करवाती है अपने ऊपर। ऐसा प्यार, ऐसा प्यार शक्ति बनता है। हमारे यहाँ बताते हैं हम लोग कि हमारे यहाँ जैसे दुनिया में भी लोग कहते हैं विकार 5 होते हैं, उन 5 विकारों में एक विकार मोह को माना जाता है। तो मोह ही प्यार नहीं होता है। हम जो ईश्वरीय वाणी सुनते हैं उसमें परमात्मा हमको क्लियर डेफिनेशन देते हैं, कहते हैं आपको मोह को रिप्लेस करना है स्नेह से। जब हम बहुत ज़्यादा मोह में होते हैं ना, तो मोह में सिर्फ हम 2-4 लोगों के लिए ही कर सकते हैं, 5वें के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उससे मोह नहीं है ना। 2 या 4 के लिए कर सकते हैं जिनसे हमारा मोह है, 5वें के लिए करना पड़े तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे अंदर स्नेह की शक्ति है तो स्नेह में हम बहुत ज़्यादा करने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं। वी बिकम अ गिवर। हमारी जो कैपेसिटी है, करने की कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। मोह में करने की कैपेसिटी घटती है, स्नेह में करने की, देने की क्षमता बढ़ जाती है। विशाल बुद्धि, विशाल हृदय बनता है, ये स्नेह की निशानी है। लेकिन वो स्नेह आएगा कहाँ से, उनसे पूछो, उनसे पूछो तो उनको वो भी कहेंगे कैसे आएगा, आजकल तो किसी के अंदर स्नेह है ही नहीं। उनको कहो दुनिया की छोड़ो, आप ये सोचो आपके अंदर स्नेह कैसे आएगा। मैं सोचूंगी मेरे अंदर स्नेह कैसे आएगा, और मैंने देखा मेडिटेशन करने से हमारी स्नेह भी बढ़ता है। स्नेह एक गुण है, और मेडिटेशन का सीधा प्रभाव, इफेक्ट ये आता है, आत्मा के गुणों में वृद्धि होती है। दैट्स द डायरेक्ट विजिबल बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन फॉर एनी पर्सन। ठीक है, तो लव एंड लॉ के बैलेंस को थोड़ा सा आप एग्जाम्पल्स, दादियों के एग्जाम्पल्स दे करके इसको बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद, अच्छा मैं एक बहुत अच्छी बात सुनाऊं,
चलो लास्ट में सुनाती हूँ, ये आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन बाबा की बात है, ब्रह्मा बाबा की बात है, लेकिन मुझे एक्यूरेट नहीं पता वो एग्जैक्टली कौन था उस समय बाबा के सामने, लेकिन मुझे एक घटना अभी रिसेंटली पता चला। तो बाबा का प्यार कैसा होता है वो हम बच्चों को तो ज़रूर सुनना चाहिए, वो लास्ट में शेयर करूँगी। अच्छा, उसके बाद आता है जब प्रोफेशनल्स की बात करते हैं ना, तो बीच में कुछ आपको ऐसी चीज़ें भी डालनी पड़ेगी जो वो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें, जैसे बैलेंसिंग स्टिलनेस एंड क्रिएटिविटी। स्टिलनेस क्या होता है? वन शुड हैव सी लौकिक, जैसे उस माता जी ने कहा लौकिक अलौकिक का बैलेंस, लेकिन लौकिक अलौकिक को बैलेंस करने के लिए कौन सा बैलेंस चाहिए? हाँ, वो अंदर का बैलेंस क्या है? हाँ, स्टिलनेस और क्रिएटिविटी एक बैलेंस है। स्टिलनेस क्या है? कुछ ना करो, सब कुछ छोड़ दो, स्टिल तो हो ही जाएंगे। स्टिलनेस क्या है? राइट। और वांटिंग स्ट्रेस। हाँ, अच्छा, वांट इज लेस, ओके ग्रेट, ओके। और स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, ओके। वो स्टेबिलिटी क्या करता है? कंसिस्टेंट इन व्हाट? कंसिस्टेंटली, ओके। जी, डीलिंग द सिचुएशन एज इट इज, ओके। हाँ, आपके भी उत्तर राइट हैं, फुल स्टॉप लगाना। अच्छा जी, राजयोगी साक्षी होकर के देखना, उसके बाद कुछ करना भी तो है ना? क्या करेंगे? न्यारा प्यारा, हाँ, एक्सेप्टेंस, ओके। अच्छा, ऑब्जर्विंग इन अ डिटैच्ड वे, अच्छा, सार और विस्तार। अच्छा, ये भी आप लिख लो लिस्ट में, मेरी लिस्ट में नहीं था पर इसको ऐड कर सकते हैं, इस टॉपिक के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। सार में रहकर विस्तार में जाना, ये बाबा ने हमें दी है ना बात, इसको आप सोचना, थोड़ा मंथन करना। हो सकता है हम सारे प्रकार के बैलेंस इस सेशन में ना डिस्कस कर पाएँ, पर आप इसको लिख लो और अपना मनन चिंतन करना और अपनी तैयारी करके कुछ पॉइंट्स निकालना, जो एक जिसने ज्ञान नहीं लिया है, कोर्स नहीं किया है, उसको भी समझ में आ सके। ठीक है, ओके। तो स्टिलनेस का मतलब मन की एक ऐसी अवस्था, जो आपने कहा वो भी राइट है, मन की एक ऐसी अवस्था जिसमें हमारे बिखरे हुए संकल्प, जब जब संकल्पों का बिखराव होता है, मैं उसको कलेक्ट कर सकूं, अपने संकल्पों को कलेक्ट कर सकूं। आई एम सच अ स्टेट ऑफ माइंड वेर आई एम एबल टू collect my thoughts, the scattered thoughts, the running thoughts, the speedy thoughts. I am able to collect it for a moment, and then I am able to resolve it. वो जो अंदर कभी कभी उलझन चलता है ना, उसको बार बार ऐसी मन की अवस्था जिसमें मैं अपने विचारों पर काम कर सकूं, उसी को स्टिलनेस कहेंगे ना। पर उसके लिए मन की अवस्था ऐसी चाहिए, इतना शांत मन चाहिए, रिलैक्स्ड मन चाहिए, स्टेबल स्थिर मन चाहिए कि आती जाती डिस्टर्बेंसेस को, आती जाती स्ट्रगल्स को, आती जाती टर्बुलेंस को मैं बार बार सुलझा सकूं। राइट? और जितनी बार मेरे को उलझन, क्योंकि आज हम कलयुग में जी रहे हैं, तो उलझन देने वाली बहुत सारी बातें आती है। अभी कोई मिला उलझन दे दिया, कोई गया उलझन दे दिया, किसी ने कुछ काम नहीं किया उलझन हो गई, किसी ने ज़्यादा कर दिया उलझन हो गई। हर पल उलझन है ना। तो हर पल मैं सुलझती रहूं, बार बार अपने मन को सुलझा सकूं। किसी ने कुछ कहा, तुरंत सुलझा दिया, एंड आई एम ओके, एंड देन मूव्ड ऑन।
फिर किसी ने कुछ किया, कुछ नहीं किया, फिर मैंने अपने संकल्पों को चेंज किया, उसको थोड़ा सा रीसेटिंग किया और फिर सुलझ करके बार बार मैं सुलझा कर अपने को चला रही हूँ। इसका मतलब मैं सुलझी हुई आत्मा हूँ, अटकने फंसने उलझने वाली आत्मा नहीं हूँ। परिस्थितियाँ तो आएंगी, बातें आएंगी, हर आत्मा अपने अलग संस्कारों से कार्य करेगी, हर एक व्यक्ति आपके अनुकूल बिल्कुल नहीं चलेगा, तब भी आपकी स्टिलनेस मेंटेन हो सके। अगर नहीं मेंटेन हुआ तो बहुत प्रॉब्लम में हम आ जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। इसलिए अब जैसे ऑफिस वाले क्या शिकायत करते हैं, बहन जी आपको पता नहीं है ये इस डिपार्टमेंट में कितना स्ट्रेस है, लोग कैसा व्यवहार करते हैं, हमें ऐसा काम करना पड़ता है जो हम चाहते नहीं हैं, हमारे डायरेक्टर का ऐसा एटीट्यूड है, हमारे फलाने जूनियर का ऐसा एटीट्यूड है, लोग आजकल काम ही नहीं करते हैं, मेहनत ही नहीं, क्या क्या बोलेंगे। तो आप क्या देंगे उनको? आपको स्टिलनेस और क्रिएटिविटी का बैलेंस देना पड़ेगा कि देखिए आपको अपने मन को शांत रखते हुए यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिवली फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशंस फॉर एवरी प्रॉब्लम। देखिए आप अगर मैनेजर हैं, आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपका रोल ही कुछ ऐसा है कि आपको लीड करना है और आपको सॉल्यूशंस देना है। दैट्स द जॉब ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, कि हर बात को ठीक मैनेज करके डिपार्टमेंट को चलाते रहना और गोल्स को अचीव करने का उनका लक्ष्य होता है। अब इस जर्नी में बहुत सारे बीच में प्रॉब्लम्स, इश्यूज, बाधाएं, हर्डल्स आएंगी, तो उसको सॉल्यूशन देना है। पर सॉल्यूशन मैं कब दे सकती हूँ? जब मेरे मन की स्थिति पावरफुल होगी। अब उसमें पावर भरने के लिए मेडिटेशन हेल्प करता है। बार आप टॉपिक चाहे कोई भी हो, आप हमेशा बीच में कम से कम 10 बार मेडिटेशन ज़रूर ले आओ। इससे कोई, अब ये मत सोचना मेडिटेशन का टॉपिक तो है नहीं तो मैं मेडिटेशन के ऊपर थोड़ी बोलूँगी, नहीं, हमारा सारा टॉपिक का कनेक्शन मेडिटेशन से ही है। तो मेडिटेशन हमारी मन की स्थिति को संभालने में मदद करता है। हमारी मन की श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए ही मेडिटेशन है। उसके बाद तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो वो मन कर लेगा। एम्पावर्ड मन सारे सॉल्यूशंस निकाल सकता है। और देखो ये स्टिल मन, ये मन की अवस्था हमको क्यों चाहिए? स्थिर मन क्यों चाहिए? शांत मन क्यों चाहिए? शांति वाला मन लेके हम अलग से बैठ जाएंगे कि भाई मुझे तो शांत रहना है, तो काम तो नहीं होगा ना। अब काम भी करना है। अब काम करने के लिए मुझे क्रिएटिव होना पड़ेगा, पर एक स्टिल मन की स्थिति के साथ, मजबूत मन की स्थिति के साथ, स्थिर मन की स्थिति के साथ, सशक्त मन की स्थिति के साथ, श्रेष्ठ मन की स्थिति के साथ यू कैन बी रियली क्रिएटिव। तब आपकी क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट काम करेगी। अगर उलझा हुआ मन होगा, अटकता हुआ मन होगा, नाराज मन होगा, इरिटेटेड मन होगा, स्ट्रेस वाला मन होगा, उदास मन होगा, गुस्से वाला मन होगा, उसकी क्रिएटिविटी जो रही सही क्रिएटिविटी भी है ना, वो भी नहीं काम करेगी। इसलिए टू बी एबल टू बी क्रिएटिव, आई हैव टू हैव अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड, एंड दैट इज व्हाई वी नीड स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन इन लाइफ। ऐसे करके आप उनको दे सकते हो, कनेक्ट करके दे सकते हो। ठीक है, तो पहला बैलेंस हमने कौन सा देखा था? लव एंड लॉ का बैलेंस। दूसरा हमने क्या देखा? स्टिलनेस एंड क्रिएटिविटी का देखा। क्योंकि वो शांत मन हमको किस लिए चाहिए? क्रिएटिव और इनोवेटिव होने के लिए चाहिए, नहीं तो लाइफ तो डल हो जाएगी ना। हाँ, ओके। फिर उसके बाद आता है जैसे just second, I don't know if I have the slide. नहीं, चलिए anyways। उसके बाद उनको न्यारा प्यारा का हम बता सकते हैं बैलेंस में। न्यारा और प्यारा हम लोग उनको, आप अपने जीवन का अनुभव दीजिए।
आप बताइए कि देखिए हम लोगों के जीवन में भी एक अच्छा बैलेंस फॉर्म हुआ है। कैसे हुआ? हमने स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में ये सीखा कि न्यारे हो करके प्यारा बनना है। अब न्यारा का मतलब क्या है? छोड़कर अलग हो जाना न्यारा नहीं है, लेकिन डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है? न्यारा का मतलब क्या है? जब जब पैनिक सिचुएशन हो, जब जब कोई परिस्थिति आती हो, जब भी कोई उलझन वाली बात आती है, उस समय मन को उस परिस्थिति में से बाहर निकालना। और परिस्थिति में से बाहर कब आता है मन? एनी आंसर्स? साक्षी भी कब हो सकता है वो? हाँ, और पैनिक सिचुएशन में, कोई परिस्थिति के समय मन को डिटैच कैसे कर सकते हैं? साक्षी कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्टेंस भी कब आएगा? ये ज्ञान है। हाँ, अशरीरीपन के अभ्यास से आएगा। पर उस समय अशरीरीपन का जो अभ्यास है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये तो हमें समझ आएगा। अब उनको देने के लिए हम क्या कह सकते हैं? हमें कहना है टू बी एबल टू स्टेप आउट ऑफ द सिचुएशन फॉर अ मोमेंट, आई नीड टू ब्रिंग माई माइंड इन टू साइलेंस। मन को शांत करना ही स्टेपिंग आउट है। क्या उनसे पूछो, परिस्थिति के समय आपका मन शांत हो सकता है? किसका मन शांत हो सकता है परिस्थिति के समय? उसका मन शांत होगा जिसको बार बार अभ्यास होगा अपने मन को शांत करने का, है ना? नहीं तो वैसे ही डेली रूटीन में नहीं होता, परिस्थिति में होएगा क्या? वो तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन उसका मन शांत हो सकता है परिस्थिति के समय, चैलेंजिंग टाइम्स के समय पर, जिसको पहले से बार बार मन को स्टिल, शांत, रिलैक्स, स्टेबल करने का अनुभव होगा। अब इसमें आप एग्जाम्पल दीजिए, उनको बताइए, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस आप बताओ, उनको कहना। इसीलिए हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, विच इज़ ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। और आप उनको बता सकते हो, जैसे मैं अक्सर एक स्लाइड दिखाती हूँ, ये वाली स्लाइड में दिखा देती हूँ। जब भी ब्रह्मा को ये ट्रैफिक कंट्रोल की बात आती है तो मैं कहती हूँ, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में यू गो wherever you want to go globally to any of our centers, you will always find that there will be some fixed timings when there will be a piece of music that will be played. Even that music and the song is fixed for that timing. And any time this particular music is being played at that time of traffic control, whoever is doing whatever that time, all sevadharis will take a pause for 3 minutes or 1 minute. And then they will do 2 things in that 3 minutes. One, soul consciousness. The other, remembering the God, to draw the power for the next few hours. So it's like charging the battery every now and then. तो इससे क्या होता है? रनिंग थॉट्स की शिकायत, बार बार ब्रेक लग रहा है, बार बार ब्रेक लग रहा है, तो रनिंग थॉट्स की शिकायत नहीं होगी। और बार बार हाई, पॉजिटिवली, हाईली चार्ज्ड, एलिवेटेड थॉट्स को बार बार क्रिएट किया जा रहा है। तो उससे भी क्या होगा? सारे दिन की दिनचर्या में पॉजिटिविटी का लेवल अच्छा होगा। और बार बार मन का जो वातावरण है वो भी साफ, स्वच्छ और शक्तिशाली रहने की संभावना बढ़ जाती है। इस मेडिटेशन के बीच बीच में जो अभ्यास हम करते हैं इसके कारण। क्योंकि देखो अभी लास्ट का समय आ गया ना, हमें बाबा की जो खरी बातें हैं और अपने यज्ञ का जो सिस्टम है ना वो लोगों को दे देना है। चाहे वो ट्रैफिक कंट्रोल है, नुमा शाम का योग है,
अमृत वेला मेडिटेशन है, स्वमानों का अभ्यास है, आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट है। अब तो समय का परिचय किसी भी तरीके से उनको दे देना है, क्योंकि समय आ चुका है ना। एक तो हम डायरेक्ट बैठ के कोर्स कराएं, और दूसरा जब हम प्रोफेशनल के सामने जा रहे हैं तो उनके बेनिफिट, दे हैव टू सी द वैल्यू इन इट। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान में हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन जो मुझे पता है वो उनके काम का नहीं है। जो उनको चाहिए वो मुझे अपने खजाने में से, बाबा के दिए हुए खजाने में से उनको कनेक्ट करके देना है ना। अच्छा, फिर उसके पता है आपको, एक बार शिवानी दीदी शेयर कर रहे थे कि कई ऑफिसेस में ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम शुरू हो चुका है। पता नहीं बैंगलोर की बात हो रही थी या नॉर्थ में कोई कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। आजकल स्कूल्स में भी बीच बीच में, क्योंकि आजकल वो हैप्पीनेस का सब्जेक्ट शुरू हो गया है ना, नॉर्थ में तो हुआ है, मुझे साउथ का मालूम नहीं है। तो नॉर्थ में स्कूल में मैंडेटरी है, सरकार की तरफ से है कि हैप्पीनेस का क्लास होता है वहाँ पर। और आजकल मेडिटेशन, योगा, इसको बहुत महत्व दिया जा रहा है। तो स्कूल्स में, कई स्कूल्स में तो बाबा के गीत चलते हैं उनके प्रेयर्स में, और बीच में जब उनको मेडिटेशन का वो बजाना होता है तो जो प्रिंसिपल्स ज्ञान के टच में है या यज्ञ के टच में है ना, वो यहाँ के म्यूज़िक लेकर के अपने स्कूल में प्ले करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो आप स्कूल्स में भी जैसे कभी कराना, या ऑफिसेस को एक सजेशन दे सकते हो आप ना, एक जैसे एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाइए और एक कुछ होमवर्क और कुछ आप उनको देने के लिए कि वो प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकें, ऐसे कुछ इजी प्रैक्टिसेस को आप लिस्ट बना लीजिए। उसमें से एक हो सकता है ट्रैफिक कंट्रोल। उनके ऑफिस में भी हम लोग जैसे जब भी सेशंस लेते हैं ना, तो कहते हैं आप भी ट्राई कर सकते हैं जैम प्रैक्टिस, जस्ट अ मोमेंट। जब हम लोग कोर्स कराते हैं ना, तो दूसरे दिन ये होमवर्क दे देते हैं, हर 1 घंटे में 1 मिनट का अभ्यास करिए। वो 1 मिनट का अभ्यास क्या होगा, देखो बैलेंस बनाना मतलब बार बार मन की स्थिति, बार बार संकल्पों में तूफान आ रहा है, तो बार बार वो जो तूफान है संकल्पों का, उसको ब्रेक करने का, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपको कुछ तो इंटरवेंशन देना पड़ेगा ना। वो इंटरवेंशन क्या है, वो ये ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है, ये जैम प्रैक्टिस हो सकता है। जैसे जैम प्रैक्टिस में हम लोग ये देते हैं कि जैसे 1 मिनट का अभ्यास करना है, तो 1 मिनट के अभ्यास में आप क्या करेंगे, वो भी उनको आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उनको अभी ना आत्मा पता है, ना परमात्मा पता है, ना कुछ और पता है, वो क्या करेंगे अभी उनको नहीं पता है ना। तो पहले दिन आप उनसे मिल रहे हो, एक ही क्लास है उनके साथ, तब भी उनको सिखा देना है, वो अपने आप प्रैक्टिस करते रहें, तो क्या करेंगे। तो हम ये बताते हैं कि उस 1 मिनट में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए, जैसे मान लीजिए अभी आपको करना है, चाहे खड़े हैं चाहे बैठे हैं, अभी आपको करना है। पहला स्टेप, ऑब्जर्व व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, डोंट एनालाइज। उनको कहना है एनालाइज नहीं करो, अरे ये पॉजिटिव थिंकिंग है, ये नेगेटिव थिंकिंग है, ये होना नहीं चाहिए, डोंट डू दैट। जस्ट सी what's happening in the mind, what is the quality, what thought is going crossing your mind, ठीक है। उसके बाद जो भी चल रहा है आपके माइंड में, उसकी स्पीड को आप थोड़ा धीमा करिए और उनको विश्वास दिलाना कि आप ये कर सकते हो। आप कहना कि आप अपनी जो भी सोच रहे हो ना, थॉट्स में जो भी दिख रहा है आपको, उसकी सिर्फ स्पीड कम करो, आराम आराम से सोचो, एक एक थॉट आए और चला जाए, ऐसे आप स्पीड ऑफ थॉट्स को कम करिए। उसके बाद आप चेक करना पिछला जो 1 घंटा बीता, उस 1 घंटे में आपके थॉट्स की क्वालिटी क्या थी, क्योंकि तब तक हमने वो 4 प्रकार के थॉट उनको बता दिया होगा। तो आप बोल सकते हो कि आप चेक करना 1 घंटे में, पिछले 1 घंटे में आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट क्या था, क्या सारा पॉजिटिव था, सभी ज़रूरी था, अगर था तो बहुत अच्छा, गो अहेड। लेकिन अगर कुछ ऐसा था जिसके बिना आपका जीवन चल सकता था, जिसके बगैर आपका काम चल सकता था, खाना भी हजम हो सकता था, और कुछ ऐसा था जो थोड़ा सा नेगेटिव था, उस नेगेटिव और अननेसेसरी थॉट्स को अगले 1 घंटे तक ध्यान रखना है, वो मन में दोबारा
क्रॉस ना करे। सिर्फ 1 घंटा ध्यान रखना है, बस, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद कहना, फिर आप विजुअलाइज करना, एक थॉट क्रिएट करना, 2-3 सोल कॉन्शियस के थॉट क्रिएट करना, मैं एक पवित्र शुद्ध शक्ति हूँ, मैं शरीर में विराजित एक बहुत सुंदर पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मुझे आत्मा में बहुत शक्ति है, मैं परमात्मा की संतान हूँ। फिर आप अनुभव करना, आसमान के भी पार से परमात्मा की ढेर सारी किरणें आपकी आत्मा को स्पर्श कर रही है। अलाउ द लाइट टू टच योर सोल, फिल योर सोल, एंड दैट्स इट। ओम शांति। ये एक्सप्लेन करने में हो सकता है हमें 1.5 मिनट लगा हो, उनको कहना है, लेकिन जब आप करेंगे ना, आप 30 सेकेंड्स में कर लेंगे। बट प्लीज डू स्पेंड 1 full minute in this exercise and do it for 1 minute at least every 1 hour. This will help you. उनको बहुत अच्छा लगता है, पर उनको हम कहते हैं अच्छा 3 दिन आप करके देखो। कोर्स वालों को तो हम कहते हैं कल प्रैक्टिस करके आना, पता है कल आएंगे तो कहेंगे भूल गए, लेकिन फिर भी कुछ उनको देते हैं ना, उनको एंगेजिंग लगता है। और बहुत लोग कहते हैं नहीं, हमसे एवरी आवर तो हमें याद नहीं रहा, लेकिन हमने 4-5 बार किया, मुझे अच्छा लगा, ऐसा वो कहते हैं। तो इसलिए एक तो जैम प्रैक्टिस आप दे सकते हैं होमवर्क में, ठीक है? ओके, और कौन सा बैलेंसिंग हम बात कर रहे थे? कौन सी बैलेंसिंग की हम बात कर रहे थे जी? न्यारा और प्यारा, डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। व्हाट इज डिटैचमेंट? डिटैचमेंट इज टू ब्रिंग योर माइंड टू साइलेंस, ब्रिंग योर माइंड टू पीसफुल स्टेट एवरी नाउ एंड देन, इन बिटवीन योर कर्मा। फिर उनको कर्म योगी का कॉन्सेप्ट देना है, उनको कहना है कि हम कर्म सन्यासी नहीं हैं, हमें परमात्मा सिखाते हैं हर कर्म करते हुए, कर्म के बीच में हमें मेडिटेशन करते हुए कर्म करना है। उससे कर्म की गुणवत्ता, कर्म की क्वालिटी अच्छी होती है। You know, your quality of karma, every action that you do it in a best way possible. तो वो कर्म भी अच्छा होता है, कुशलता बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है। और दूसरा, कर्म और योग को अलग नहीं करिए। जैसे हम हर काम करते हुए गुस्सा भी कर लेते हैं, हर काम करते हुए स्ट्रेस भी ले लेते हैं, हर काम करते हुए चिड़चिड़ भी कर लेते हैं, तो हर काम करते हुए मेडिटेशन नहीं कर सकते। It's just about thoughts, right? It is your choice whether you want to create an anger wala thought or you want to create a meditation wala thought. Your choice. What do you want to feel? Whatever you want to feel, create the kind of energy. हाँ जी, sister. देखिए, अच्छा प्रश्न है। इन्होंने पूछा कि बाबा ने हमको सिखाया है कर्म में योग कैसे शामिल रखना, अशरीरी होकर कर्म करना, बाबा की याद में कर्म करना, उनको कैसे दे कर्म योगी। उनको ये जो जैम प्रैक्टिस है ना, एक तो आप ये दे सकते हैं, कर्म के बीच बीच में योग आ रहा है। दूसरा, उनको कह सकते हैं आप कम से कम 10 बार सारे दिन की दिनचर्या में जब भी आपको टाइम मिले 3 प्रश्न पूछना अपने मन के अंदर ही, थॉट्स के अंदर ही। तो मैं दादी जानकी का एग्जाम्पल देती हूँ हमेशा, उनको देती हूँ कि दादी हमारे तो इसके बहाने क्या होता है, आपको पता है, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार सेंसिबल लोग होते हैं, उनको ज्ञान उनके पास भी बहुत है। किसी की एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, किसी का स्किल सेट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, किसी की ट्रेनिंग का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, किसी की जो जनरल नॉलेज होता है वो बहुत अच्छा। वो लोग अपने फील्ड में बहुत महारथी होते हैं। लेकिन
अब हमें उनको, जब हम ऐसे महारथियों के पास, एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास जाते हैं या ऑफिशियल्स बड़े लेवल पर जाते हैं, तो जब हम दादियों की बात सुनाते हैं ना, या कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं, वो उनको ज़्यादा टच करता है, उनकी भावना बन जाती है उनके प्रति। तो अब तो समय आ गया, अब तो प्रत्यक्षता में बाबा और दादियों को भी, दादियों की विशेषता भी दे डालना है। तो दादी का मैं एग्जाम्पल सुनाती हूँ अक्सर, कि हमारी दादी जी जो जानकी दादी हैं, वो 104 वर्ष तक की आयु में भी इस इतने बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती रहीं। मैं हमेशा कहती हूँ, हम लोगों से कई गुना ज़्यादा एनर्जी थी दादी में। उन्होंने 80 साल अपने तपस्वी जीवन को बहुत अच्छे स्तर पर पहुंचाया, इतनी मेहनत, अपने इतनी साधना की उन्होंने। और हम लोग दादी को देखते थे, दादी हमेशा 3 बात किसी भी सभा में, ज्ञानी अज्ञानी बड़ा छोटा सबको 3 बात ज़रूर बोलती थी सबके बीच में, जिससे इतना पावरफुल वातावरण बनता था। ये तो आपको पता है ना, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। अब मैं कौन, दादी हमेशा मैं कौन का मतलब, आप भी, हम उनको बताते कि आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कौन का मतलब, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक सशक्त आत्मा हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। ये कॉन्शियसली आपको ये थॉट्स क्रिएट करने होंगे शुरू में। कौन हूँ मैं? अ डीप रियलाइजेशन of who am I in reality. That will enable reconnection with your own treasures in the soul. ठीक है। दूसरा, उनको कहना है, दादी जब कहती थी ना मेरा कौन का मतलब, who do I belong to? Who do I belong to? मतलब परमात्मा की याद। दादी बीच बीच में भगवान को याद करती थी और पिता के रूप में याद करती थी, प्यार से याद करती थी। इसके बीच में पता है हम क्या बोलते हैं? अब आपके ऊपर है, आप लोग भी कराने वाले बैठे हैं, लेकिन जो हम सुनाते हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं, आपको जैसा भी ठीक लगे। मैं अक्सर इसके बीच में भगवान को याद कैसे करना चाहिए वो भी सुनाती हूँ। जैसे आजकल लोग भगवान को याद कैसे करते हैं, कब करते हैं? कब करते हैं? सुबह करते हैं। उनकी सुबह कितने बजे होती है? जब उठते हैं तब करते हैं। सभी करते हैं ऐसा? सब नहीं करते हैं। और आप, हम सब बाबा के बच्चे हैं ना, ज्ञानी तो आत्मा, इसलिए थोड़ा बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। लेकिन जब दुनिया से आप पूछोगे तो दुनिया पता क्या कहेगी? तुरंत एकदम सही जवाब देगी। वो कहेंगे जब प्रॉब्लम होता है तब, जब कुछ चाहिए होता है तब, और जब कोई मुसीबत होती है तब। और जो कि राइट है। तो उनको कहना है, देखो आज दुनिया कैसे कब याद करती है, कैसे याद करती है? लिस्ट के साथ याद करती है। मेरा बच्चा, हे भगवान मेरा बच्चा पास करा देना। हे भगवान मेरा मकान बन रहा है, कल लेंटर डलने वाला है, ज़रा देख लेना। हे भगवान मेरा ट्रांसफ़र करा दो। हे भगवान मेरा ट्रांसफ़र रुकवा दो। मेरा प्रमोशन आ रहा है, ज़रा देख लो। हाँ, तो जब हम लिस्ट के साथ याद करते हैं तो उनको बताना है कि ये याद नहीं होती है, ये फरियाद होती है, और फरियाद में शक्ति नहीं होती। ईश्वर की याद में शक्ति होती है। भगवान को याद करने से शक्ति मिलती है। और याद किसको कहते हैं? प्यार से, स्नेह से, दिल से, बिना किसी कारण के, रोज़ हर कर्म के बीच में भगवान को जब याद किया जाता है उसको कहते हैं प्यार भरी ईश्वरीय याद। ऐसी याद में शक्ति है। फिर उनको कहना है, जब दादी हमेशा याद करती थी ना, प्यार से करती थी, रोज़ करती थी, हर कर्म के बीच में करती थी, निस्वार्थ भाव से करती थी, बिना किसी लिस्ट के करती थी, कोई कंडीशन के बिना करती थी। इसलिए क्या होता था, दादी कहती थी ना मेरा कौन, तो दादी को अंदर से ये फील होता था कि जैसे भगवान उनका पर्सनल कनेक्शन है आत्मा का परमात्मा के साथ। And that thought itself, who do I belong to, used to give her so much energy. That was the source of energy for her, this thought. फिर उसके बाद दादी का
तीसरी बात होती थी, मुझे क्या करना है। अक्सर दुनिया में लोगों को सारा दिन चल रहा होता है, कौन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कैसे करता है, ये कैसे बोलता है, ये क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको वैसे करना है। सारा दिन यही चलता है, दिल से हाँ 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 यही चलता है। तो उनको कहना है, दादी हमेशा किसी के ऊपर अटेंशन नहीं देती थी, दादी हमेशा खुद पर ध्यान रखती थी। अच्छा अभी जो भी परिस्थिति है, जो भी बात है, जो भी सिचुएशन है, उसमें मुझ आत्मा को अपना बेस्ट रोल कैसे प्ले करना है। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। ये दादी का मंत्र था जो हम लोगों को एक तरह से वर्षे में मिल गया। और जब भी हम ये खुद प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे आप बता सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो। हम लोगों को ये जो प्रेरणा मिलती है और हम ऐसी बातें छोटी छोटी अपने धारणा में लाते हैं, तो वो हमें बहुत बल देता है। आप भी ट्राई करके देखो, फिर उनको कह सकते हैं। अगर आप मैं कौन, सशक्त आत्मा, पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा वाला नहीं करोगे ना, फिर दूसरा वाला काम करेगा। आपको पता है मैं कौन हूं, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो, ये वाला कौन काम करेगा फिर। अब आप देख लो आपको कौन सा वाला चाहिए, सोल कॉन्शियसनेस वाला चाहिए, प्योर थॉट्स वाला चाहिए, या इगोइस्टिक थॉट्स वाला चाहिए। व्हाट यू वांट टू चूज। तो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि देखो ये वाली जो बातें हैं ना, जो दादियों की धारणाएं हैं, बाबा की अव्यक्त मुरली की जो बैलेंसेस बाबा ने दिए हैं, ये दुनिया को नहीं पता है, लेकिन हम उसको ठीक से कनेक्ट करके दे मतलब इट शुड मेक सेंस टू देम, दे शुड सी वैल्यू इन इट, तब उनको वो बात हजम हो जाएगी। ठीक है। और ये विश्वास हमें उनको दिलाना है, ये कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, बहुत इजी है, चलते फिरते हो सकता है, उठते बैठते हो सकता है, जस्ट अबाउट थॉट्स ना। कभी भी कोई पूछता है ना मेडिटेशन को कितना टाइम लगेगा, हम कितनी देर में सीख पाएंगे, कभी हम ये ना कहें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, हाँ समय लगेगा। ऐसे बोलने से बेचारी आजकल की आत्माओं को तो पहले ही हार हो जाती है। टेल देम बहुत जल्दी हो जाएगा, मेक इट इजी फॉर देम टू डाइजेस्ट। ठीक है जी। But the truth is, it's not going to take time at all. अगर हम भी इसको थोड़ा समझे ना, मेडिटेशन में एक्चुअली देखा जाए, मेडिटेशन का बेनिफिट लेने के लिए टाइम नहीं लगता है। अब बेनिफिट का मतलब हम क्या सोच रहे हैं, ज्वालामुखी योग, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन फॉर नाउ फॉर श्योर। लेकिन मेडिटेशन का जो बेनिफिट होता है, द वेरी फर्स्ट डे somebody meditates, even if it is a non-BK, they will feel relaxed. That relaxation is the benefit of meditation. That happens in a day. Right? Next day, one sits for meditation for the second day. They feel very calm inside, which they have not experienced it before. That also is a benefit. उसमें तो 2 ही दिन लगा ना। तो पहले तो हम सोच लें कि हम क्या उनको, how can we give it to them. इसीलिए मैंने कहा ना कि थोड़ी प्रिपरेशन हमारी भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, पर राइट समय पर राइट पॉइंट क्लिक करके काम करे, उसके लिए तैयारी चाहिए। पहले क्या होता था, शुरू में मैं तैयारी नहीं करती थी, और अब मुझ आत्मा का कुछ पार्ट ही ऐसा इस जन्म में कि जैसे खींच के सेवा में ला दिया। ऐसा माना, ऐसा नहीं कि मेरे को शौक था सेवा का, ऐसा नहीं है, पर पार्ट ही ऐसे खुलता चला गया। तो जब शुरू में सेवा होती थी ना, एक तो डर इतना लगता था, ज़बरदस्ती पकड़ के कहते थे नहीं आप सुनाओ, इतना डर होता था, और डर इतना हावी हो जाता था कि पॉइंट्स ही भूल जाते थे, जो पता होता था वो भी भूल जाता था, और मन में अंदर आता था आज कैंसिल हो जाए तो अच्छा है प्रोग्राम।
या तो कोई और चला जाए या कैंसिल हो जाए, क्योंकि छोटे थे और डर भी बहुत, आज भी डर लगता है लेकिन पहले ज़्यादा डर लगता था। तो तैयारी कुछ होती ही नहीं थी, चाहते भी तैयारी नहीं कर पाते थे क्योंकि डर हावी होता था। तो उसके बाद एक बार बॉम्बे जाना हुआ और वहाँ पर पहली बार दिल्ली से बाहर जाके सेवा करना था। तो वहाँ एक सेंटर पे रुके, तो वहाँ सेवा क्या थी, जैनियों का जो पर्युषण पर्व होता है, आपको पता है, जैन जो लोग होते हैं ना, जैनी लोग होते हैं, उनका पर्युषण पर्व था। वो सारे साल में एक मास ऐसा होता है उनका जिसको वो पर्युषण पर्व कहते हैं। और उस मास में वो सारा दान पुण्य का काम करते हैं, धर्म कर्म का काम करते हैं, वो सात्विकता अपनाते हैं, पवित्रता अपनाते हैं, दान पुण्य करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, और ना वो एक महीना वो करते हैं पर्युषण पर्व में। उसमें बुलाया गया था ब्रह्मा कुमारी इसको कि आप आकर के कुछ सुनाओ। तो उसकी सेवा मुझे मिली, मैं गई। एक तो वैसे ही डर कि कुछ नहीं आता है, ऊपर से ये भी वहाँ जाते ही वो भाई बहनों ने कहा, दीदी वो जैनी है, भगवान का नाम मत लेना, भगवान का कॉन्सेप्ट वो लोग मानते नहीं हैं, और भगवान की बातें मत सुनाना। तो हमें तो दूसरा कुछ आता ही नहीं है सुनाना, क्योंकि आत्मा परमात्मा ही आता है। तो फिर उन्होंने कहा, दीदी इस बात का ध्यान रखना, वो लोग ये शब्द यूज़ करते हैं, ये शब्द यूज़ नहीं करते, उनके सामने ये नहीं बोलना, उनके सामने ये नहीं। इतना इंस्ट्रक्शन और मिल गया। एक तो पहले ही डर, ऊपर से जैनी की सेवा। तो उस दिन सच में मुझे अंदर से ऐसा लगा, बहुत डर लगा। तो मैंने क्या किया, अब और कोई रास्ता ही नहीं है। तो सुबह अमृत वेले के बाद मैं डायरी पेन लेके बैठी, पहली बार लाइफ में। मैंने कहा अब तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो डायरी पेन लेके बैठी। तो जैसे ही डायरी पेन लेके बैठी, एक एक करके लाइंस लिखती गई। तो जो लिखती गई ना, कुछ लिख दिया, उसके बाद एक मन में थोड़ी सी हिम्मत आई कि चलो मेरे पास कुछ तो है उनको देने के लिए, कुछ हिम्मत आई। कई बार हम क्या करते हैं पता है, ये भी थोड़ा सा हमारी बुद्धि का अभिमान हो सकता है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, नहीं कर लेंगे, हो जाएगा, इतने पुराने ज्ञान में कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। We should not go unprepared. We should not go unprepared. Or especially when you are talking to professionals, especially when you are talking on some subjects like these, जिसमें आपका मास्टरी होना चाहिए, जिसमें हमारी मास्टरी नहीं है, कम से कम समझ की मास्टरी तो हो। कर्म की मास्टरी तो जब आएगा तब संपूर्ण बनेंगे, लेकिन एटलीस्ट समझ की मास्टरी तो हो, क्लैरिटी तो हो कि जिस टॉपिक पे हम बोल रहे हैं। हम दूसरों की क्लास सुन करके क्लास कराने जाएं, इट विल नॉट वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम। मुझे पता है बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं, बेचारे उस छोटे छोटे होते हैं तो उस समय उनको वही पता है, दैट्स व्हाट इज अवेलेबल टू देम। जैसे ही उनको बोला जाता है ना, अच्छा हमको क्लास कराना है, दे ईयर प्लग्स लगा के सुनना शुरू, इतना सुनते, एंड उस समय निकलता कितना है, नहीं निकलता, हम सब जानते हैं ना। तो इसलिए ज़रूर तैयारी करनी चाहिए, खासकर जब आप ऐसे ऑफिसेस की सेवा करते हैं, पढ़े लिखों की सेवा करते हैं, तो वी शुड गो प्रिपेयर्ड। ओम शांति।